Welcome back, dear students. Myself Pratik Polekar, and I'm here today for one of the most beautiful topics of 11th standard, 12th standard, FY, SY, TY, MCOM as well. Rather, a topic which is going to have a complete inclination with regards to not just with your 11th and 12th, sirf, but your entire graduation, post graduation and even further. ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में, आप ऑफिसेस में, बैंक्स में जब भी काम करोगे, दिस टॉपिक विल हेल्प यू रिफ्रेश योर सेल्फ बेटर. So this is the topic which is going to set a base for a good practical knowledge for your overall career. So make sure everybody you are with me with this, and thereby you are able to understand what exactly comes with this topic. So moving further with this topic, the topic's name, rather more than the topic, the subject itself is being called as secretarial practice. Dhyan do everybody. The name of the subject is called as secretarial practice. Wait a minute, all of you. Yeah, the name of the subject is secretarial practice. Now, ideally, if you go with the name of the subject, so you will clearly understand कि secretarial practice मतलब as a secretary or a nature which is of a secretarial work, उसकी real life में practice जब होती है, when the secretary starts practicing in real life, when the secretary starts generating or working in real life, उसके कौन से काम करने के तरीके हैं, उसके कौन से functions हैं, उसकी कौन सी utilities हैं, उसकी कौन से over and above functioning capabilities हैं, इन सब के बारे में study करता है ये secretary. But he is not called as a secretary in the typical sense जैसे हम लोग जानते हैं called as a personal secretary. No, he is a person who is a secretary of the company. He is a person who is a secretary of a company registered under the Companies Act 1956, previously being known as, और आज की तारीख में हम उसे कहते हैं Companies Act, the Companies Act 2013. पहले था the Indian Companies Act, and now it is the Companies Act 2013. It's both are same, but both are different with regards to their amendments. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. So the first part today will be more about introduction and less about the only topic that we'll be studying. So secretarial practice, this is about a human being. This is about a human being जिसको अगर हम legal terms में देखे जाए तो he is called as a biological person. He is called as a biological person, okay? Biological person having a legal existence. He is called as a biological person having a legal existence, okay? Very simple, everybody. And a person who's acting on behalf, a person who's acting on behalf of a company or for a company with regards to the outsiders, who's acting on behalf of a company for the outsiders. जो outsiders में कौन कौन है? बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है, there is something called as insurance companies है, just a minute everyone, there is something called as insurance companies है, there is something called as FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. इन सबके साथ लिंक कंपनी के ऊपर का बनाने का काम कौन करता है? तो ये सेक्रेटरी काम करता है. नाउ यू विल क्वेश्चन मी कि सर ऐसा क्या है इस सेक्रेटरी के पास कि पूरे कंपनी का ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी. पे अटेंशन एवरीबडी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. द वर्ड इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडियरी, acting like an intermediary. Intermediary मतलब he is trying to be a link between, he is trying to be a link between, किसके साथ लिंक कर रहा है वो? He is trying to be a link between a company and the outside world, a company and a outside world. उसको कहते हैं हम लोग secretary. और ये टर्म आई कहाँ से है? ये टर्म, दिस टर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टर्म कॉल्ड एज, rather this term has been given to us by ICSI, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1980 पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर. इन्होंने अपने एक सेक्शन में कहा है द प्रोविजन फॉर द
word secretary, a person who's acting as an intermediary between the company and the outsiders, acting as an intermediary between the company and the outsiders, जिनको कहा गया है secretary. वंडरफुल. अब ये सेक्रेटरी करेगा क्या? ये सेक्रेटरी कहता है कि चलो आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम नॉट अ सेक्रेटरी. इसीलिए मैंने आपको पहले कहा, क्या कहा कि ही इज अ पर्सन हु इज अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, हैज पास द एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कॉल्ड एज अ CS एग्जामिनेशन. This person has been registered himself as the CS under this institution, and he has been given license by ICSI to work as a legal link between company and outsiders. So आप लोग कहोगे कि sir, why company secretary? Why not a chartered accountant? Why not a lawyer? Why not a CWA? Why not a MBA guy? Why only company secretary? क्योंकि ICSI जो एक statutory body है, इस ICSI ने स्ट्रेट अवे क्लियर किया है, सबमिटेड एवरीवन, दिस ICSI ने स्ट्रेट अवे क्लियर किया है कि अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद अस, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद ICSI, who has passed the CS examination, and at the same time who has passed the CS examination, he has studied laws like company law, number one, he has studied laws like securities law, he has studied laws like banking laws, and he has studied all the actual statutory laws which are required to understand and highlight the legal status of the company, the link between the company, the legal authentication documents of the company with the outsiders. तो ये आदमी इसीलिए authenticated person है, he is a legal person, he is a rightful person to look over the affairs of the company with the outsiders called as a CS. इसीलिए he is called as an intermediary or a link between the company and the outside world. अभी outside world मतलब क्या? In simple terms, right from the starting of the company. Now as we are learning a subject called as secretarial practice, the starting of the company in SP would be called, in legal terms इसको नाम है incorporation of a company. कंपनी के incorporation से लेकर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन तक, कंपनी के incorporation से लेकर कंपनी के एडमिन तक, ओके, इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के डेली अफेयर्स, और इसके बाद द एंड, दैट इज कॉल्ड एज द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इनकॉर्पोरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अफेयर्स एंड वाइंडिंग अप मतलब द एंड ऑफ द कंपनी. ये सारे काम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड, ये सारे कामों की लिंक कौन है? ये सारे कामों काम करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी है. एंड दैट्स व्हाई सेक्रेटरी इज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, नॉट एनी सिंगल इंडिविजुअल. दिस इज क्लियर एवरीबडी? दैट्स नंबर सेकंड फॉर द डे. और ये SP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का 90% लिंक इज विद ICSI पोर्शन. आई टेल यू वन ऑनेस्ट स्टोरी एवरीबॉडी, यू नो 90% स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो फॉर लॉ, जो लीगल प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू बिकम कंपनी सेक्रेटरीज, वो लोग 11th और 12th में कंपल्सरीली SP लेते हैं. दे कंपल्सरीली टेक SP इन 11th एंड 12th. लेकिन जो लोग CA करना चाहते हैं, they want to go for auditing and accounts in future, those people prefer mathematics in 11th and 12th. So get this thing very clear to everybody. Number one. दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात इसमें ये है कि apart from ICSI and apart from the secretarial practice as a subject, this subject is more about legal knowledge. This subject is more about legal knowledge, everybody. And when we talk about legal knowledge, when we talk about legal understanding, our language should also be legal. क्योंकि I'm sure I'm not just talking about 11th and 12th standard kids, लेकिन आज all over India, people who are preferring to go for a profession in law, profession in CS, profession in legal status, LLP में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बाद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP बोल के सब्जेक्ट जब भी करेंगे, आप लोग आपकी जार्गन ऑफ द सब्जेक्ट ध्यान में रखो. What I'm talking about, you should keep in mind jargon of subject. What do we mean by jargon of subject? Jargon of subject का मतलब ये है कि अगर आप लोग इंग्लिश लिखते हो तो आपको इंग्लिश लिटरेचर वाली लैंग्वेज आनी चाहिए.
इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश लिटरेचर वाली लैंग्वेज आनी चाहिए. इफ यू आर राइटिंग एसपी विच इज अ लीगल सब्जेक्ट अगेन, तो यू शुड बी एबल टू राइट अ लीगल लैंग्वेज. ये जार्गन ऑफ राइटिंग बोलते हैं इसे बच्चों. इसीलिए मैंने आपको, अगर आप लोग देखोगे मेरे पहले एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने क्लियरली कहा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के वाइंडिंग अप से लेकर मतलब एंड तक ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है. क्लियर एवरीबडी? लीगल टर्म्स है तो लीगल टर्म यूज करेंगे, नंबर 1. दूसरा, जार्गन का मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त वी डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट और लॉस, वी टॉक अबाउट सरप्लस और डेफिसिट इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त. लेकिन अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ते वक्त हम लोग कभी भी थिंग्स नहीं कहते हैं. हम लोग क्या कहते हैं साइंस पढ़ते वक्त? वी ऑलवेज कॉल इट एज एलिमेंट्स. हम लोग क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट्स कहते हैं, टू कंपोनेंट्स कहते हैं. तो ये डिफरेंट जार्गन्स ऑफ लैंग्वेज है. क्लियर एवरीबडी? नंबर 2. So let's move on further everybody. This topic is more about theoretical nature. सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी का फंक्शन क्या है, सेक्रेटरी के तरीके कौन से, what are the classifications and types of secretary. So for this, make sure we start with this topic. The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. Various forms of organizations have emerged in the present economic situation. और इन सब के लिए द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, समवन शुड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन एज सच इज कमिंग अप बेटर इन द मार्केट टुडे. क्या दिया है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील्स विद ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरीज, फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी डेट बैक टू 19th सेंचुरी, जब डेली करस्पॉन्डेंसेस के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए कोई ना कोई आदमी अपॉइंट किया जाता था, जिसको हम लोग सेक्रेटरी कहते थे, असिस्टेंट भी कहते हैं. Now when we talk about a secretary, we definitely first have it in our mind कि यार let's say if I am running an academy, तो मेरे में बहुत काम है. I have to do lot many things. मुझे बैचेस लेनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आइडियाज अच्छी लानी है. इन सब के लिए आई एम गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड. आई कैन नॉट वर्क एज अ admin as well. I cannot work as a cleaner in the academy as well. I cannot work as a person who will greet people as well. So I appoint some people, or I appoint someone who will work for my betterment, for me, and that would be called as a secretary. And that's where secretary is a term derived from the Latin word called as secretum or secretus, which means secrets. और ये आदमी ऐसा है जिसको कंपनी के सब कुछ पता है. He is working for the boss, he is working for the owner, he is working for the chairman, he is working for a superior authority in the company, ताकि अथॉरिटी के ऊपर का काम और उनके ऊपर का प्रेशर कम हो सके. And that is why a secretary. Let's move further everybody. The word secretary is derived from the Latin word called as secretarius, which means someone who works for a person of great importance. मतलब अगर आज हम बात करें, इफ वी टेक एन एग्जांपल टुडे ऑफ लेट्स से मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के अंदर, मुकेश अंबानी के लिए काम करने वाले देयर आर 10 सेक्रेटरीज फॉर एग्जांपल. सो दीज पीपल आर एक्टिंग लाइक सेक्रेटरीज, दीज पीपल आर एक्टिंग फॉर मुकेश अंबानी टू रिड्यूस हिज बर्डन ऑफ वर्क. दैट्स कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी. फाइन, मूव ऑन फर्दर एवरीबॉडी. In the Roman times, scribea was a professional letter written on one who maintains confidential records. Secretary was first referred to as amatya, sachiv or a chitnis, which means a person who does secretarial work. I'll tell you, हमारे देश में ऐसे एक महान रूलर ही नहीं लेकिन महान रेवोल्यूशनरी भी मैं कहूँगा उनको, the great person who we were fortunate to have his feet touched on our land, जिनका नाम था द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज. उन्होंने 16th सेंचुरी में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16th सेंचुरी में सेक्रेटरी ऐसी टर्म लाई थी, बट नॉट एग्जैक्टली बीइंग कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी, बट द टर्म वाज कॉल्ड एज अष्टावधानी. Shivaji Maharaj used to say that this person is my Ashtavadhani person, which means he can do 8 tasks at one point of time. हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज में सेक्रेटरी भी 8 टास्क एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही करता है. क्या करते हैं सेक्रेटरी? बैंक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं,
लीगल डॉक्यूमेंटेशंस देखते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कंपनी के अफेयर्स इन बिटवीन कुछ भी है वो भी देखते हैं, थोड़े बहुत अकाउंट्स भी देखते हैं, लीगल स्टेटस कंपनी का क्या है वो भी देखते हैं, बाहर के फाइनेंशियल हाउसेस के साथ कैसे डील करना है वो सब देखते हैं। इसीलिए सेक्रेटरी इज ऑल्सो पर्सन कॉल्ड एज अष्टावधानी, विच मीन्स अ पर्सन हु विल डू 8 थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स मूव ऑन फर्दर। फॉर्मर नेम्स ऑफ सेक्रेटरी, लैटिन टर्म में उनको नाम दिया है सेक्रेटरियस, रोमन एम्पायर उनको नाम देते हैं स्क्रिबाया, इंडियन हिस्ट्री में उनको नाम दिया है अमात्य, सचिव और चिटनेस। और हम लोग एक एडिशन करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने इनको नाम दिया था अष्टावधानी, विच मीन्स अ पर्सन हु कुड डू 8 थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, meaning and definition करेंगे। The Oxford Dictionary defines secretary as a person whose work is to write for others, especially one who's employed to conduct correspondence, keep records and transact at various other business for another person, society, corporation or public. According to Companies Act 2013, company secretary or secretary is defined as a person who is appointed by the company to perform functions of a company secretary। मतलब जो भी company secretary के काम है under the act, which act? ICSI ने जो कंपनी सेक्रेटरीज की एक ब्रेड एंड बटर है, जो कंपनी सेक्रेटरी का फादर है, लाइक अ फादर ओवर ऑल द कंपनी सेक्रेटरीज इन द वर्ल्ड, इस एक्ट ने कहा था कि हम जो काम देते हैं हमारे अंडर लॉज के अंदर जो भी काम है वो काम कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसेस में करेंगे। लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू एवरीबडी कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिया है। 1980 के तहत जो एक्ट फॉर्म हुई थी उधर कहा है कि अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उस आदमी को हम लोग जो मेंबर है किसका, इंस्टीट्यूट का, कौन से इंस्टीट्यूट का, ICSI का, सिर्फ मेंबर है क्या, नहीं, ही इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड ओवर देयर। एग्जाम पास करनी पड़ती है, 3 साल की एग्जाम, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 5 साल के बाद इफ ही पासेस देन ही हैज टू रजिस्टर अंडर ICSI कॉल्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। मूविंग ऑन फर्दर एवरीबडी, जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीबडी। If I have to tell you something with regards to the apart from this, you will question me कि सर कंपनीज एक्ट कुछ ऐसा आपने बोला था, something we are going to talk about. Yes, students, 1956 में the Indian Companies Act, 1956 में the Indian Companies Act 1956 ऐसी एक एक्ट फॉर्म हुई थी। And this act was formed purely to give all the people who are wanting to start a company एक उनको एक प्लेटफॉर्म दे कि चलो आपको कंपनी फॉर्म करनी है ना, हमने आपके लिए कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, वो फॉलो करो, कंपनी शुरू करो लॉज के तहत। अगर आप कायदे के दरिए में रह के काम करोगे नो प्रॉब्लम, इफ यू ट्राई एंड क्रॉस दीज लॉज एंड डू समथिंग इलीगल देन कंपनीज एक्ट विल फाइट अगेंस्ट इट। तो ये कंपनीज एक्ट बनाई थी। लेकिन इसका इशू ऐसे हुआ कि 2013 में ओके एवरीबडी, 2013 में कंपनीज एक्ट को बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, 1956 की एक्ट है, 2013 में हम लोग एग्जैक्टली 66, 76, 86, 96, 206, 216 मतलब 57 ईयर्स के बाद ये एक्ट इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है, वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है। आर वी गोइंग टू फॉलो द ट्रेडिशनल लॉज? अरे कंपनी इज अ बिग थिंग। आज कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैनकाइंड। तो हम फिर भी 60 साल पहले के लॉज फॉलो करें क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए 2013 में इस पूरी की पूरी एक्ट को निकाल दिया और उसके बदले में अमेंडमेंट लाई। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज इन द एक्ट। क्लियर एवरीबडी? कुछ नए लॉज लाए, कुछ नई उसमें प्रोविजन डाली, लेकिन बेस इज 56 ओनली। 2013 इज एन एडिशन ऑन इट। क्लियर एवरीबडी? गुड। लेट्स मूव ऑन फर्दर एवरीबडी। नाउ फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के फीचर्स क्या क्या है? एक बात हमेशा ध्यान में रखो, टॉपिक लाइक एसपी और टॉपिक लाइक ओसीएम, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीटली डील विद व्हाट? ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीटली डील विद
pure understanding with the help of this pattern is called as web diagram pattern. वेब डायग्राम, ठीक है। वेब डायग्राम में क्या है? वेब डायग्राम में कुछ नहीं है, बट यू स्टडी इन दिस graphical pattern. We study in the pattern called as the overall graphical denominations, pictorial representations में वो जल्दी समझ में आता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी वैसे ही करूंगा, जहां पे जरूरत पड़े वहां पे आई विल डेफिनेटली गेट इनटू द थियोरेटिकल पार्ट। मूविंग बैक, इंडिविजुअल सेक्रेटरी कौन है? इंडिविजुअल है, मतलब अ सेक्रेटरी इज अ बायोलॉजिकल पर्सन। छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, यू विल बी एबल टू क्लियर योरसेल्फ वेरी वेल। ही इज अ बायोलॉजिकल पर्सन, ही इज अ नेचुरल पर्सन एवरीबॉडी, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सिंपल। What are his duties? And his duties are to work on behalf of the company for the betterment of the company. लेकिन सारे लीगल काम कंपनी के secretary does on behalf of the company. A secretary has to perform routine and administrative duties such as correspondence, conducting meetings, maintaining records, and providing information. That's it. Qualification: a secretary should have been, to be called as a company secretary, has to be compulsorily qualified under the Institute of Company Secretaries of India Act 1980 के तहत he should be a compulsory passed out student of this institute. इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? A secretary can be appointed by individuals, professionals, society, corporation, government, everybody, any company. अभी इसमें एक रूल क्या है, ध्यान दो everybody. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी करता कौन है? जिस भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है, जिस भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है, उस कंपनी को लीगल ऑब्लिगेशन है टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड दैट टू AFTP, मतलब फुल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन जिस किसी कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ एंड अबव, दैट कंपनी हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट ए फुल टाइम सेक्रेटरी वर्किंग फॉर द कंपनी। एक है कंपनी में जो काम करेगा, मतलब ही विल बी अपॉइंटेड इन द कंपनी एज एन एम्प्लॉई। और 5 करोड़ वाली कंपनी का रूल क्या है कि ही विल बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन ये फुल टाइम कंपनी का काम देखने वाला है। भले कंपनी में रह के नहीं काम करेगा, लेकिन कंपनी का ही काम करने वाला है। कंपनी को सेक्रेटरी अपॉइंट करने की कंपल्सरी प्रोविजन दी गई है। Am I clear with everyone? That's about appointment. Paid employee. Secretary is a paid employee. ठीक है, ये फोकट में काम करने वाला नहीं है. He is the person who will believe in profit. He is the person who says, I'm rendering my professional expertise service. Why the hell should I work free? Here I will be working in complete profits only. Okay, next one, confidential officer. A secretary is a custodian of secret and confidential information. कंपनी के जो भी चीजें, भले कंपनी के एक आध चीज चेयरमैन को पता नहीं होगी, लेकिन सेक्रेटरी विल नो ऑल द नुक्स एंड नीड्स ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई सेक्रेटरी को सब पता है। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी अगर कुछ भी गलत काम करता है, then ICSI cancels his registration or he is not allowed to re-register himself for a period of 5 years. मतलब 5 साल के लिए उसको completely debarred किया जाता है. He's taken off. His license is taken off. Make sure. Representative. Secretary is a representative. मतलब he is acting as a representative of an organization, of a company, of a financial institution, of a hub. जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल सेक्रेटरी नॉर्मल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज, IS। नेक्स्ट वन, qualities. A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. The qualities like concentration, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. ठीक है, yes, he should be smooth. मतलब come on यार, you're a professional, you got to act like a professional, you got to be like a professional, you got to talk like a professional, you got to write like a professional, and very important, you got to have an attitude like a professional. That's it everybody. Next one we're going to talk about is what is called as importance of secretary. सबसे पहले सेक्रेटरी क्या करता है? एक्सपर्टाइज, एडवाइस एंड गाइडेंस देता है। ये टाइम पास गाइडेंस एंड एडवाइस नहीं है, एक्सपर्टाइज एडवाइस है। दूसरा, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर।
एक एडमिन काम करने वाला, ही विल लुक फॉर द कंपनी मेंबर्स कितने हैं, कंपनी के शेयर्स कितने हैं, होल्डिंग कितना है कंपनी, इन टर्म्स ऑफ वेदर कंपनी इज परफॉर्मिंग स्मूथली और नो, या कुछ इलीगली चल रहा है, ही विल लुक इनटू ऑल दोज थिंग्स कंप्लीटली। ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी रखता है वो, मैंने पहले ही बोला है। करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट का इन सिंपल टर्म्स मतलब है ही इज एक्टिंग लाइक एन intermediary, he is acting like an intermediary, he is acting like a link, acting like an intermediary, acting like a link between a company and the outside world, between a company and the outside world. He is a legal compliance officer. Compliance का मतलब है कि अगर compliance in simple terms means what? Compliance मतलब क्या, कंपनी सारे के सारे, is company trying to follow all the legal provisions as prescribed by whom? As prescribed by the law. Whether company is following all those provisions in a sequential manner, yes or no, ये देखने का काम करने वाला है company secretary, and that's why it's called as a legal compliance officer. Next one, conducting meetings. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीटिंग्स के पॉइंट के बारे में। देखो कोई भी कंपनी हो, जनरली कंपनी इन लीगल टर्म्स इज कॉल्ड एज JSC, जिसका मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आइडियली 3 तरह की मीटिंग्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 व्हाट इज कॉल्ड एज द, सबसे पहले जो लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के हिस्ट्री में सबसे पहले होती है, बट दैट इज हेल्ड ओनली वंस। कब की जाती है वो मीटिंग कंडक्ट? 15 मंथ्स, विद इन 15 मंथ्स ऑफ द स्टार्टिंग, इससे पहली प्रोविजन थी, लेकिन द प्रोविजन इज कंपनी शुरू होने के बाद 9 महीनों के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग SM कंडक्ट करनी जरूरी है कंपनी को, कॉल्ड एज द स्टैट्यूटरी मीटिंग। दूसरी मीटिंग कौन सी है? दूसरी मीटिंग इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। ये कंपनी में जितने बार चाहे हो सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू मीट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तीसरी मीटिंग कौन सी है? तीसरी मीटिंग है मीटिंग ऑफ AGM। तीसरी मीटिंग है मीटिंग ऑफ AGM, कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। तीसरी मीटिंग है मीटिंग ऑफ AGM, कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी में हर साल वंस इन फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, AGM। चौथी मीटिंग है कॉल्ड एज EOGM, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर कंपनी AGM कंडक्ट करने के बाद भी कंपनी को लगता है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एक बहुत ही सीरियस इशू है, एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, तो कंपनी मीटिंग कंडक्ट करेगी जिसका नाम है EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर एवरीबॉडी? दैट्स इट। नेक्स्ट वन, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मीटिंग कब कंडक्ट करनी है? मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया है, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया, सबके लिए नोटिस निकालो, ड्राफ्टिंग निकालो। इसीलिए ना आई टेल यू वन पॉइंट, ओके, ICSI के पोर्शन के अंदर, CS के पोर्शन के अंदर देयर इज वन टॉपिक, देयर इज वन आई वुड से सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट्स नेम इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। उस सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग एंड कंप्लायंस सब्जेक्ट का नाम है, और ये CS इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट ड्राफ्ट्समैन। तो ही ड्राफ्ट्स ऑल द नोटिसेस, टेंडर्स एंड एवरीथिंग टू द पीपल। इंग्लिश उसका अच्छा है, गुड। और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ध्यान दो, ICSI ने अपने कुछ एक सेक्रेटरी को फॉलो करने के जो स्टैंडर्ड्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसका एक पार्ट किया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। वैसे ही CA वालों का भी होता है, दोज आर कॉल्ड एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। CA वालों का देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो CA लोग फॉलो करते हैं, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी लोग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब लीगली सब सही किया है कि नहीं किया है, ये करने का काम किसका? ये करने का काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। दैट्स इट। Now the next part that we're going to talk about is what is going to be called as the types of secretary, जिसमें है पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जिसमें है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ओके एवरीबॉडी? यस, we'll be talking about this purposely in the next part. So this first part of video concentrated upon 3 main points. सबसे पहला, what is this topic, what is the subject of SP about?
Is it a compulsory subject? बिल्कुल भी नहीं. SP is not a compulsory subject. It is an option given in many colleges for mathematics. It is an option given in many colleges for IT. Number one. दूसरा, at the same time, in the first point itself, it talks about a work of secretarial nature. It's a legal nature, not a normal secretary. इसलिए secretary में points हैं, टाइप्स है रादर, टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा बंदा है कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. ये पर्सनल सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये उस सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं जिसने ICSI के अंडर एक बड़ी एग्जाम क्लियर की है, उस इंस्टीट्यूट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एंड कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ 10 करोड़ है, वो कंपनीज इनको कंपल्सरीली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंट करते हैं. ये इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इसको हमने ये भी देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी को लैटिन टर्म क्या है, रोमन टर्म क्या है. लैटिन टर्म इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड ओवर देयर रादर कि लैटिन टर्म इज कॉल्ड एज सेक्रेटरियस. ओके, दैट्स सिंपल एज दैट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर इसको सेक्रेबिया कहते हैं. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडियन हिस्ट्री, जिसको अमात्य, चिटनिस या सचिव भी कहा जाता है. और हमारे द ग्रेट रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने इनको टर्म दी थी like a secretary at that time, but he called him as a Ashtavadhani person. He is clear on all many things of the working of the company. उसके बाद हमने देखा है कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरी के प्रोविजन है क्या, कंपल्सरी प्रोविजन है. कंपनीज एक्ट पहले थी 1956 की, उसको निकाल के 2013 लाई गई है. उसके बाद द इंपॉर्टेंस एंड द फीचर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी हमने किया है. इट्स अ कंपल्सरी फैक्टर, ही इज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. Is this clear everybody? Now with regards to the types of secretary का जो part है, we'll be talking about it in the next video everybody. Thank you so much all of you.